So let me tell you something about IT field. Okay, most of the people, some people like Prasanna and all, you might have already known this, but still for others, benefit for the others, I would like to explain them. Okay, how does the IT market works? Generic, very generic, nothing related to data analysis. Okay, nothing related to data analysis. I'm going to talk now. But in case you have any questions in the middle, you just please stop me and you can ask me questions. Okay, I'm comfortable in English, I'm comfortable in Hindi, I'm comfortable in Odia, and also I'm comfortable with Telugu. Okay, so whichever language you are comfortable out of these four, not other than this, I will not be able to understand. So in these four languages, you can ask me anything, I will try to explain you. Okay, right. So how the IT field works? You guys can see my screen? Yes, sir. Right. Okay. So there is little confusion among students that when you are working in a company, what we will be working for a client and all. What is a client? Who is a client and how does it works? For example, let us take some company here, like for example, TCS. Okay, everybody knows TCS, right? So Yes, sir. for example, once you have learned the required skills as a data analyst, Excel, Power BI, SQL, Python. Okay. For example, once you learn these things and your profile will be created, everything will be done, and then you will be starting interviews. For example, you got in this one, I don't think Tableau is included, but I'm talking in generic, even if it is Tableau also, whatever the tool you are learning. Okay. So once you get an offer from any IT company, it can be TCS, it can be IBM, it can be Wipro, whatever it is. Okay. So this is called a payroll company. Okay. So TCS is going to pay you. Okay. TCS is going to pay you, but you will be working for a different client. Okay. So TCS has multiple vendors. Okay. It will be having, for example, like Nestle, PepsiCo, some other companies. There will be multiple other companies will be there. Okay. So what they will do once you got hired in TCS, there will be some project which Nestle wants to get it done. Okay, so they will approach TCS and they will ask, we need some data analyst for my project. Okay, to complete my project, I need a data analyst. So TCS, what they will do, they will refer you as a candidate. For example, TCS have candidate one, like this three candidates they have hired. So they will refer these three peoples for Nestle. So Nestle will take an interview. Okay, Nestle will take an interview as per his requirement. Okay, Nestle will have some requirement, right? Whether those Nestle might be working in Nestle are required for Power BI role. They want somebody from Power BI role. Majorly Power BI. It's not always Power BI only. It can be Power BI plus SQL. It can be Power BI plus Python. It can be Power BI plus Excel. There could be situations where they want only Python people. Okay, it depends entirely on the client. So based on what they require, TCS will give the profiles to them, to Nestle, and Nestle will conduct interviews, and whoever is beneficial, whoever is required for their project, they will hire that person. Okay, they will hire that person. So for example, you are that person. You will be working, you will be doing data analysis for Nestle, but TCS is going to pay you. Okay, Nestle will pay to TCS and TCS will pay you. So it will be like this. Okay. And TCS is going to pay to their candidates. Once this project is over, so this project will not be lifelong, right? You will be creating the dashboard or whatever the analysis you are going to do. You will be sending it to production. What is dev, what is UAT, what is production? I will explain it in a different class. Okay. So once the report is published and Nestle people got the report, whatever they want to understand, they understood from there, this project is over. That will go into a maintenance project. There is a difference between development, maintenance, and migration. That also I will explain later. Simply, this is over. Then what you will do? Then again you will come back here.
Okay, once this is done over, then again you will come back to your original place, to TCS. So you will be called in, you are in bench. You might have heard this term that I am in bench from last 2 months or 1 month or 10 days or 15 days, something like that. Okay. So the bench period is something you, when you do not have a project, no, that is called bench period. Okay. So then again, there will be some requirement from PepsiCo or some other companies and all. Okay. So again, they will approach TCS. TCS will give the candidates. Again, they will take some interview. And once you are selected, then you will be coming here to work for their project. In this way, it will keep on going. Okay. So always there will be two people. One is your payroll company. Another one is your client company. Right. Guys online, are you guys following? So guys, सबको समझ में आ रहा है कि कुछ you guys Yeah. Yes, sir. सर हिंदी में Yes, समझाएंगे sir. तो भी चलेगा क्या? इंग्लिश यू आर कंफर्टेबल और थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे तो या आप अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, प्लीज आस्क मी. These are all very normal base. We are not talking anything about data analytics. Just to give a background, why I am telling all these things? क्योंकि हम जब कंपनी ज्वाइन करेंगे, we will not be as a fresher. We will join, okay, with some kind of experience. We are going to join. So at that time, it should not be, these things should not be very new to you. ठीक है? Yes, no? Yes, sir. Especially people who are coming from a different background, okay, BSc से या फिर hotel industry or any other industry, or coming from like somebody coming from a clothing industry and all. Okay, so for you guys, I am trying to explain these things and all so that you should be clear what exactly happens in IT. Okay, इसको क्या बोलते हैं? सर्विस बेस्ड कंपनीज बोलते हैं. ठीक है, आईटी में क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ कंपनीज आते हैं. वन आर सर्विस बेस्ड, अनदर वन इज प्रोडक्ट बेस्ड. ठीक है, सर्विस बेस्ड मतलब they will just provide the resources. हेलो Yeah. सुधीर सर मैं थोड़े को इंग्लिश कही ना थोड़े टिके ओडिया रे कोन. हाँ माने तमको किछि माने इश्यू फेस कर जगी हिंदी और इंग्लिश. ना ना इंग्लिश कही ना टे ओडिया कहले थोड़ा टिके भलो किन टे माने क्लियर हो जांदा डाउटा. राइट, ठीक अछि. हिंदी रे चलिबो कारण बहुत जण हिंदी रे अछंती. हिंदी आज्ञा हिंदी भी चलिबो तो आज्ञा. हां हां हिंदी रे सर फोन तो टिके. Right. Okay, so I will be mixing. Okay, English Hindi I mix कर today. Right. So generally companies two types. Mostly company दो तरीके के होते हैं. ठीक है, जो भी आईटी कंपनीज होते हैं, सर्विस बेस होते हैं, प्रोडक्ट बेस होते हैं. प्रोडक्ट वाले क्या होते हैं? उनका खुद का प्रोडक्ट होता है. ओके, सैमसंग हो गया, ये सब हो गया ना, दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स. सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे हमारा टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ओके, ऑल दिस, आईबीएम हो गया. आईबीएम हैज बोथ. आईबीएम का प्रोडक्ट भी है, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, वो सब आईबीएम के प्रोडक्ट्स है. आईबीएम के सॉफ्टवेयर भी है. ओके, सिमिलरली सर्विस बेस्ड भी होता है. मतलब सर्विस बेस्ड मतलब दे विल प्रोवाइड द रिसोर्सेस, कैंडिडेट्स को दे विल गिव इट टू अनदर कंपनी. जैसे नेस्ले का है या पेप्सिको का है, मेट्रॉनिक का है, देयर विल बी मल्टीपल कंपनीज. So majorly we have, you will get opportunity in the service based companies only. Product based में मिलना थोड़ा कम होता है. क्यों? क्योंकि number of companies also are limited. Okay, all the IT, आप जितने भी IT companies maximum देखोगे ना, जो मीडियम रेंज के होते हैं, सारे सर्विस बेस्ड होता है. What they will do, they will provide the resources. Resources को प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंपनी को, so that उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे विल वर्क एंड दे विल गिव देम, और फिर वापस आ जाते हैं. एंड इट डजंट मीन कि आप अगर सर्विस बेस में हो और कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो 6 महीने का होगा या 1 साल का होगा, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स. कभी कभी एक ही क्लाइंट के लिए आप 10 साल भी काम कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ बिग इज द प्रोजेक्ट. आपका जो डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितना टाइम रहोगे. कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप बोर हो गए, सेम डेटा देख के बोर हो गए, यू कैन टेल. आपका जो मैनेजर होगा वो पेरोल कंपनी का मैनेजर होगा, आप उससे बात कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर मैं 4-5 साल से वहीं पे हूँ,
जितना सीखना था मैंने सीख लिया है और ज्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं है, वही चीज मैं बार बार कर रहा हूँ। तो यू कैन टेल टू योर मैनेजर इन द पेरोल कंपनी, देन ही विल टॉक टू देयर पीपल। नेस्ले के जो कस्टमर्स होंगे उनके साथ बात करेगा, काउंटर पार्ट के साथ बोलेगा कि ट्राई टू गिव हिम समथिंग एल्स, कुछ नया दो उनको लिए। ही वांट्स टू लर्न समथिंग एल्स। पावर बी में काम कर रहे थे, आप बोलोगे पावर बी बहुत ज्यादा हो गया, मुझे टैब्लू सीखना है, मुझे टैब्लू में आप काम देना शुरू करो, मैं धीरे धीरे वो भी करने लगूंगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे टू लर्न न्यू थिंग्स वंस यू गेट इनसाइड। एक बार अंदर जाने के बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आप आज ज्वाइन करें कल बोलोगे कि नहीं मुझे कुछ और सीखना है, वैसा नहीं होगा। ओके, थोड़ा टाइम करने के बाद आपके ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अगर इसको हम नया चीज नहीं देंगे ये छोड़ के चले जाएगा, अगर ये छोड़ के चले जाएगा फिर उसके पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में दे विल ट्राई टू गिव यू। ओके, सो मोस्टली योर अपॉर्चुनिटीज, आपके अपॉर्चुनिटीज जो आएंगे सर्विस बेस में आएंगे, प्रोडक्ट बेस में भी आते हैं बट कंपैरेटिवली लेस। अगर 10 में से इसके 7 चांसेस है, इसके 3 चांसेस होंगे, समथिंग लाइक दिस। इट डिपेंड्स। ओके, इट डिपेंड्स। कुछ प्रोडक्ट बेस है जहां पे आपके मतलब क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा, मतलब आपके टाइमलाइन ज्यादा टाइट नहीं होंगे। आपको कुछ दिया है काम, वो नहीं कल इमीडिएटली नहीं पूछेंगे कि कहाँ तक गया है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट बेस में ऐसा ही है, ठीक है। और आपका सर्विस बेस में क्या होता है ना, आप कस्टमर के लिए काम करते हो, तो वो लोग आप मतलब उनके लिए आउटसाइडर हो, आप दूसरी कंपनी से आके काम कर रहे हो, तो वो लोग पैसे दे रहे हैं। जब वो लोग पैसे दे रहे हैं वो चाहेंगे कि जितना जल्दी आप खत्म करो उतना बेटर है, तो इसलिए और थोड़ा बहुत प्रेशर डालते हैं। मगर वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग हो तो हम डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं नहीं ये 5 दिन में खत्म नहीं होगा, इसको 15 दिन लगेंगे फॉर दिस रीजंस। ओके, तो वैसे बात करने के लिए वी शुड बी टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। नहीं तो क्या होता है, आप जहां देखते हो ना लोग बोलते हैं कि आईटी में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, वो मेन रीजन है जिसको काम करना नहीं आता है उनके लिए प्रेशर ज्यादा है। जिसको जिसका टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होता है उसके लिए कोई भी प्रेशर नहीं, वो बोल देगा कि नहीं ये आप जैसे बोल रहे हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं करने आई एम द डेवलपर, आई नो कितना टाइम लगेगा, क्यों इतना टाइम लगेगा, दीज आर द रीजंस। तब वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने रीजनिंग दे दिया ना क्यों इतना टाइम लगेगा करके। सो इट ऑल डिपेंड्स द मतलब हमारा स्किल सेट क्या है, ठीक है। गाइस, आर यू गाइस फॉलोइंग ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Service basis is there, I think Amazon, Flipkart services is there. दोनों हैं, Both are services. फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी है, Amazon- Both are product and services. उनका खुद का जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज है डेटाबेस, तो उनका वो प्रोडक्ट है। ओके, लाइक दैट। ओके, डिपेंड्स कि कहाँ, मतलब आपका काम करने का तरीका चेंज नहीं होगा, आप प्रोडक्ट में काम करो या सर्विस में काम करो, आप वही टूल यूज करोगे। अगर एसक्यूएल यूज करना है तो वहीं पे भी वही एसक्यूएल है, यहाँ पे भी वही सीक्वल क्वेरीज है। अगर एक्सेल में करना है वहां पे भी वही एक्सेल है, यहाँ पे भी वही एक्सेल है। आपका स्किल सेट दोनों के लिए काम करेगा। ओके, Sir, when will be there, like, when will be the position of bench position? So that time company will pay for us. या इट विल पे फॉर यू, बट द थिंग इज आप कितना टाइम बेंच में हो, आपका लेवल क्या है। आप अगर एज ए फ्रेशर जाते हो, कल परसों मतलब 2 महीने पहले एक लड़का आया था यहाँ पे, उसको कुछ हेल्प चाहिए था, डेटा एनालिस्ट में वो आया था, वो इन्फोसिस में 2 साल से बेंच में है, मतलब कुछ भी नहीं किया 2 साल से, ही इज गेटिंग सैलरी। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर था, तभी ज्वाइन किया था, उसका सैलरी इतना ज्यादा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बेंच में हूं, मैं अगर 3 बेंच में हूं, 3 महीने से ज्यादा मुझे टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर 3 महीने से ज्यादा मैं बेंच में रह गया, देन मोस्टली दे विल ट्राई टू रिमूव मी, ठीक है, क्योंकि मेरा सैलरी काफी ज्यादा है, ठीक है, वो इतना दिन मुझे बेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, कंपनी, बहुत अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करता है
ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कंपनीज है, ठीक है, ओडिशा में जो कंपनी है, जो नया नया स्टार्ट हुआ है, बड़े कंपनीज है, वो लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ का जो आईटी उनका कंपनी जो स्टार्ट किया है, वो अगर फटाफट निकाल देंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो एक रीजन। वही कंपनी हैदराबाद में, बैंगलोर में, अलग जगह पे भी है, वहां पे इतना टॉलरेट नहीं करते हैं, वहां पे 3 महीने में निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर वैसे करने लगे, इनका एम्प्लॉय नंबर काउंट नहीं बढ़ेगा, अगर काउंट नहीं बढ़ेगा तो उनको वो लोकेशन से निकलना पड़ेगा। so many factors are dependent on your bench वाला पीरियड क्या होता है। बट इन जनरल इफ यू आस्क मी, अगर आप 5-6 years एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, then they will tolerate you up to 3 months. Sir, when we work in Nestle company, okay, we work in Nestle company. After completed project, okay, we are settling like bench position. After that, when we like join again Ipso company, we have to face again interview. Yes. ओके, एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट अब जाओ, इट डिपेंड्स। ये कहीं कहीं कैसा होता है, अगर आपका नेस्ले का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और पेप्सिको का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फ्रॉम टीसीएस, टीसीएस का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और पेप्सिको का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट। दोनों टीसीएस वाले ही हैं, मगर एक काम कर रहा है नेस्ले के लिए, एक काम कर रहा है पेप्सिको के लिए। आप नेस्ले में बहुत अच्छा काम किए हो, आपका फीडबैक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और नेस्ले वाला प्रोजेक्ट मैनेजर पेप्सिको वाला प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जान पहचान है, तो ये अगर पूछेगा कि भाई मुझे एक डेटा एनालिस्ट चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में जो किया था, अच्छा काम किया था, कोई है क्या? Reference. हाँ, अगर उसने बोल दिया कि नहीं ये मेरे प्रोजेक्ट में काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, यू कैन टेक हिम, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, फटाफट ले लेगा वो। ओके, इन दैट वे ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स इट विल वर्क। बट अगर इन जेनरिक जाते हो, देन इफ आप कोई भी नया क्लाइंट के लिए काम करने के लिए, ही विल टेक द इंटरव्यू। क्योंकि इसका नेस्ले का सिचुएशन अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले में आप पाइथन में काम किए हो, मगर पेप्सिको वाले को चाहिए क्या, एसक्यूएल चाहिए या फिर पावर बीआई चाहिए, देन आपके पास वो स्किल है कि नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एनी अदर क्वेश्चंस गाइस ऑनलाइन? No, sir. ऑल गुड? यस सर। Right. So this is how, one second. Realme आपका अगर कुछ क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक, उसके बाद फिर से यू कैन गो टू म्यूट। ओके, right. So this is how it works. And coming to data analysis. Okay, coming to data analysis. डेटा एनालिसिस का रिक्वायरमेंट, जैसे अभी आप नेस्ले का प्रोजेक्ट बोला या फिर पेप्सिको का प्रोजेक्ट बोला, एक्चुअली काम क्या होता है वहां पे? ठीक है, ये नेस्ले वाला व्हाई ही वांट्स ए पर्सन फ्रॉम टीसीएस, किस लिए? कि उसका बिजनेस प्रॉब्लम कुछ होता है। डेटा एनालिस्ट विल सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, आपका खुद का एक शोरूम है, खुद का एक शोरूम है जहां पे यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर देयर। एक स्टोर है, यू कैन मैनेज इजीली कि कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, और बेचने के बाद आपका कितना सेल्स हो रहा है, और दोनों को कंपेयर करके आपका प्रॉफिट्स क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 ब्रांचेस है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में 100 ब्रांचेस है, तब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ओके, वो अगर आप कुछ डेटा एनालिसिस नहीं करोगे, वो चलता रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा हमको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, सो उस टाइम में आपको क्या चाहिए, मतलब हर एक स्टोर में यू आर जनरेटिंग डेटा। कंपनी सम ABC, you have in multiple locations, 1 2 3 4 5 6
ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस में यू हैव लोकेशन, यू हैव योर स्टाफ, आप सेल्स हर एक ब्रांच में आप कर रहे हो। अभी इसमें एम्प्लॉयज है, इसमें एम्प्लॉयज है, इसमें एम्प्लॉयज है, हर जगह पे एम्प्लॉयज है। हर साल आपको इंक्रीमेंट देना है, एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देना है। आप कौन से बेसिस में इंक्रीमेंट दोगे? सबको एक ही इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ऑन व्हाट बेसिस? कि उसने क्या काम किया है, कितना सेल किया, कंपनी के लिए क्या फायदा बना है। तो जब यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, यहाँ पे ओवरऑल 100 या 1000 एम्प्लॉयज है, वी नीड द डेटा ऑफ दोज 1000 एम्प्लॉयज कि इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट दे हैव डन। मंथली उसने कितना सेल किया है, कार का सेल फॉर एग्जांपल, मंथली उसने कितना सेल किया है, कितने प्राइस में सेल किया है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसको हम कितना पे कर रहे थे। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन जब होगा देन वी कैन डिसाइड कि टॉप परफॉर्मर्स कौन है आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉयज, हु आर माय 10 परफॉर्मर्स हु आर डूइंग वेरी वेल। ओके, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल गिव देम इंक्रीमेंट या जो भी देना है, बोनस वोनस जो भी देना है वो देंगे। सिमिलरली हम वेंडर से कुछ रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऑयल चाहिए, आप कैस्ट्रॉल से ले रहे हो ऑयल, पिछले 5 साल से ले रहे हो, वो कॉस्ट बढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। आपके पास 3-4 वेंडर है, फॉर एग्जांपल कैस्ट्रॉल है, शेल है, होटन है, ऐसा कुछ वेंडर्स है। तो जब तीनों का डेटा आपके पास आ रहा है देन यू कैन एनालाइज एंड फाइंड इट आउट कि कौन सा बेटर है। आप जिससे ऑयल ले रहे हो, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पता चल जाएगा कि कैस्ट्रॉल का हम 10 मशीन में डालें, शेल का 10 मशीन में डालें, कौन से मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा मशीन खराब नहीं हो रहा है, कौन सा मशीन का मतलब ऑयल कंजप्शन ज्यादा है, किसका कम है। ये सब डेटा हमारे पास जब होगा उसको एनालाइज करके हम एक डिसीजन कर सकते हैं कि इन तीनों में से किन दोनों को रखना है, किसको निकालना है। रैंडमली हम नहीं निकाल पाएंगे, वी नीड टू हैव ए बैकअप। मतलब कौन से बेसिस में वी आर ट्राइंग टू कीप द कस्टमर्स और रिमूव द कस्टमर्स, वेंडर्स बेसिकली। Like that only, now I am working for a client. I will give you one example. Okay, what they do, they make pacemakers. Pacemakers मतलब क्या है? जो हार्ट में हार्ट बीट जब फ्लक्चुएट होता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा या कम होता है, तब पेसमेकर डालते हैं, हार्ट के अंदर पेसमेकर डालते हैं। तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जिसका हार्ट रेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर होता है उसके लिए एक अलग सा पेसमेकर बनता है, और जिसका हार्ट रेट जितना होना चाहिए उससे कम है तो उसका अलग सा पेसमेकर बनता है। ठीक है, वो पेसमेकर जब हम हार्ट में इंस्टॉल करते हैं उसके बाद से वो कितना टाइम रहेगा, कितने दिन के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है, वो सब डेटा एक बार इम्प्लांट होने के बाद वो कंपनी गैदर करता है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। वो लोग क्या करते हैं ना, हर एक सेकंड में 4 पेशेंट्स को टच करते हैं, इतना बड़ा कंपनी है। अभी उसको इतना सब डिवाइसेस जब है, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिवाइस कब रिप्लेस करना है, कि क्या करना है, कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। दे कैन ओनली डू व्हेन वी क्रिएट सम रिपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस करके कुछ रिपोर्टिंग जब बनाएंगे उस रिपोर्ट से वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल्समैन हो, ओके, आपके कंपनी में 100 सेल्समैन है एंड यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू 10,000 कस्टमर्स। जनरली B2B में क्या होता है, आप आज प्रोडक्ट को सेल किए हो, उनके कंपनी के अंदर गया है, तुरंत वो पैसे नहीं देते हैं। ओके, देयर विल बी क्रेडिट टर्म्स कि 30 डेज के बाद हम पैसे देंगे या 60 डेज के बाद हम पैसे देंगे, तुरंत नहीं देते हैं। तो जब आपके पास 10,000 कस्टमर होते हैं, किसका 30 डेज खत्म हो रहा है हमको पता नहीं चलेगा। ओके, जब हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा, उस रिपोर्ट में यहाँ पे एक सेल्समैन का स्लाइसर दूंगा जहां पे हर एक सेल्समैन का नाम यहाँ पे होगा। अगर कोई सेल्समैन ए वाला आता है तो उसको पता चलेगा विच कस्टमर्स टू टारगेट टुडे। पर कलेक्शन, वो हर रोज 10,000 कस्टमर को कॉल करके कलेक्शन नहीं पूछ पाएगा,
राइट। अगर मैं एक रिपोर्ट बना के देता हूं जिसमें हर रोज उसमें डेटा चेंज होगा कि कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, लाइक दिस, मैं अगर एक रिपोर्ट बना के देता हूं कि दीज आर द कस्टमर्स यू नीड टू टारगेट टुडे, हुज पेमेंट वी नीड टू कलेक्ट, इनका ड्यू डेट पास आ रहा है, तो यू नीड टू रिमाइंड देम। तो वो सेल्समैन के लिए इजी होगा कि हाँ मुझे आज इस 8 लोगों को कॉल करना है, वो अच्छे से फॉलो अप कर। अगर मैं ये रिपोर्ट नहीं देता हूं तो उसके 10,000 कस्टमर है, किसको कॉल करेगा? इट इज इम्पॉसिबल। लाइक दिस एवरी कंपनी नीड्स रिपोर्ट्स। हर एक कोई भी कंपनी आप पकड़ लो, छोटा कंपनी हो कि बड़ा कंपनी हो, ग्लोबल कंपनी हो या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बिजनेस करना है, कंपनीज आर डूइंग बिजनेस, नथिंग एल्स। ओके, पेशेंट का बिजनेस हो सकता है, मतलब हॉस्पिटल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर दे डोंट हैव ए डेटा, अगर if you are not creating reports by using any tool, it can be Python, Power BI, Excel, SQL, whatever it is, if you are not creating reports for them, they cannot work day to day basis. छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी होता है, ये तो मैं कंपनी लेवल में बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक टीम है, 10 लोगों का टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके अंडर में 10 लोगों या 20 लोगों का टीम है, वो 20 लोग सारे एंगेज्ड है प्रोजेक्ट में, या फिर 15 लोग है, 15 लोग खाली है, या 5 लोग खाली है, या जो 10 लोग जो 15 लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो 100% यूटिलाइज है, या फिर 3-4 घंटे का काम होता है उनका, वो सब पता करने के लिए एक रिसोर्स एलोकेशन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट से उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चल जाएगा कि कौन खाली है, तो उसको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं और भी प्रोजेक्ट ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस है जो 100% यूटिलाइज्ड नहीं है, मैं और 2-3 प्रोजेक्ट लाके उनको दे सकता हूँ और मेरा रेवेन्यू मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर उसके पास वो रिपोर्ट नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन खाली है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो डबल काम करते हैं, 100% से ज्यादा हो जाता है, कुछ लोग 50% करके छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास वो रिपोर्ट है, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, किन का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन बैलेंस। सो हर जगह पे आपको रिपोर्ट चाहिए, बिना रिपोर्ट का कोई भी कंपनी में कुछ भी काम नहीं होता है। अगर आपका होटल इंडस्ट्री भी अगर देख लोगे, इफ इट इज हैविंग डेटा, दे विल बी आल्सो डूइंग सम एनालिसिस। वो पाइथन यूज नहीं कर रहे होंगे, मगर एक्सेल यूज कर रहे होंगे, फॉर श्योर दे विल बी यूजिंग एक्सेल और समथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। So reporting is used for decision making. Day-to-day decision making के लिए data analysis is must and should, and this is not specific to any particular industry. Okay, कोई भी इंडस्ट्री आप देखो, it is required. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देख लो, जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, वो लोग जो स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, ग्राफ दिखा रहे हैं कि कैसे स्कोर, अगर इफ यू आर स्कोरिंग same 10 runs per over, what will be at the end of 20 years and all. That is all data analytics only. Okay, they are doing at a very high level, मतलब मिनट का ले रहे हैं, but when you are doing in IT industry, it will not be in that level, but still last 5 years में क्या हो रहा है, they want to know. मेरे पास एक बजट है, फॉर एग्जाम्पल 2 lakhs का बजट है मेरे पास। ओके, मेरे पास एम्प्लॉयज कुछ 50 लोग हैं, वो 2 लाख आई वांट टू स्पेंड इट फॉर देयर ट्रेनिंग, उनको ट्रेन करने के लिए मेरे पास 2 लाख का बजट है, मगर वो 2 लाख यूज करके मैं 50 लोग को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। वो 2 लाख से मैक्सिमम आई कैन ट्रेन अप टू 10 मेंबर्स ओनली। तो उन 50 में से कौन सा 10 को ट्रेन करूं? मैं रैंडमली किसी 10 लोग पिक करके ट्रेन नहीं करूंगा, अगर वैसे करूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा मुझे। तो उस 50 में से आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हु आर द 10 पीपल्स हु एक्चुअली रिक्वायर ट्रेनिंग। ओके, सो उस 50 में से आई विल ट्राई टू फाइंड आउट किसको एक्चुअली ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको लेके ट्रेन करूंगा तो इतना वो इम्प्रूव करेंगे, मगर एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको ट्रेन दूंगा, वो अगर 50% भी अचीव कर लिए, फिर भी मेरा सेल्स ज्यादा बढ़ जाए, उनका भी मतलब ग्रोथ होगा, एज ए होल कंपनी मेरा भी ग्रोथ होगा। सो आई नीड टू फाइंड हु आर दोस 10 मेंबर्स। कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगेन आई नीड टू हैव द डेटा।
जितना भी वो लास्ट 5 साल से क्या किया है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन जब मैं गैदर करूंगा, देन आई विल बी एबल टू डू some kind of decision making. So finally, what I am trying to tell you here is data analytics is required for decision making in any industry, any profile. कहीं पे भी हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, definitely we need reports for decision making. Online guys. Yes, sir. Online? सबको समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, no? हाँ जी सर. Yes sir, got it. Got it, right. Any Okay. questions till now? कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन यू कैन आस्क. ऐसा नहीं है कि ये सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है. आप सडनली उठ के पूछ सकते हो, सर आपका नाम क्या है. ठीक है, यू कैन आस्क एनीथिंग. सर अगर डाटा एनालिस्ट का काम ये होता है तो बिजनेस एनालिसिस और डाटा एनालिस्ट में डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंस है. बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, यू आर ए डेटा एनालिस्ट, ओके, DA1 मैंने यहाँ पे दे दिया, DA1. ओके, सो क्या होता है, आपका जो क्लाइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, और आप डेवलपर हो, डेटा एनालिस्ट हो. ओके, आप इसके लिए इसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ये बोलेगा मुझे दिखाओ मेरा टोटल सेल्स कितना है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, हु आर द टॉप 10 कस्टमर्स हु आर गिविंग मी हाईएस्ट प्रॉफिट्स, हु आर द बॉटम 10 कस्टमर्स हु आर गिविंग मी लोएस्ट प्रॉफिट. ऐसा रिक्वायरमेंट देता है ये. ओके, व्हाट इज माय टोटल सेल्स. उसके बाद ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, मतलब लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इस साल का ग्रोथ क्या है, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ का सेल्स क्या है, मतलब लास्ट मंथ कितना सेल हुआ था, इस मंथ सेल कितना हुआ था, दोनों को कंपेयर करके मैं कितना ग्रो किया हूं या ग्रो नहीं किया हूं, वो इंफॉर्मेशन देना है. ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट. टॉप 10 कस्टमर्स मेरे कौन है, बॉटम 10 कस्टमर्स मेरे कौन है, वो सब इसको देखना है इस क्लाइंट को. एज ए डेटा एनालिस्ट वी विल क्रिएट दिस रिपोर्ट. बट कभी कभी क्या होता है, ये अगर नॉर्मल सेल्स डेटा है, देन वी डू नॉट नीड ए बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है, ही विल बी द ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड डेटा एनालिस्ट. कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, जैसे इंश्योरेंस हो गया. इंश्योरेंस के बारे में आपको सब कुछ पता नहीं है, कितना क्लेम रेट होता है, उसका कुछ रेशियोस होते हैं, मतलब अगर आप अप्लाई करते हो कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लोन अप्लाई करते हो तो लोन आएगा कि नहीं आएगा, कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी होते हैं जो सबको पता नहीं होता है. ठीक है, तो वो डेटा एनालिस्ट को समझने थोड़ा मुश्किल होता है. सो बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट विल बी ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, इसको सब कुछ पता होता है, वो इंश्योरेंस डोमेन के बारे में या फिर बैंकिंग डोमेन के बारे में, इसको सब आइडिया होता है. तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट को देता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट विल टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, और बिजनेस एनालिस्ट को ये सब भी आना चाहिए. ओके, सो बिजनेस एनालिस्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा. बट जब क्लाइंट जब ये मतलब रिक्वायरमेंट देता है, तो अगर इफ यू आर यूजिंग पावर बीआई, देन बिजनेस एनालिस्ट विल टेल द क्लाइंट इज दैट पॉसिबल और नॉट. ऐसा कुछ भी होते हैं, क्लाइंट कुछ भी दे देता है, कुछ पॉसिबल होते हैं करना, कुछ पॉसिबल नहीं होते हैं. So business analyst will understand the requirement and he will tell him this is possible, this is not possible. This is not possible in the way you are asking me, but it is possible in a different way. Okay, आप जैसे बोल रहे हो वैसे नहीं होगा, बट उसी इंफॉर्मेशन में अलग तरीके से आपको दिखा सकता हूँ. ओके, ऐसा करके इनके बीच में डिस्कशन होता है. बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है टू गैदर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है. उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, डेवलपर को समझाता है उसको क्या करना है. ओके, डेटा एनालिस्ट जो होता है उसको समझाता है कि इसका काम क्या दिखाना है, रिपोर्ट में क्या बनाना है. अगर डेटा एनालिस्ट के पास और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, अगेन वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास नहीं जाएगा, वो बिजनेस एनालिस्ट के पास जाके उसको पूछेगा, सर ये मेरा डाउट्स है, ये मेरे क्वेश्चंस है,
अगर इसको मोस्टली इसको पता होता है या ये सॉल्व कर देता है, अगर इसको भी समझ में नहीं आता है then he will again go back to client to understand the requirement. तो बिजनेस एनालिस्ट का काम है, he is the bridge in between the developer या फिर डेटा एनालिस्ट and the client. और इसको जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके वो प्रोजेक्ट के डेटा के ऊपर 100% नॉलेज होता है, ठीक है? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Any other questions? No, sir. Others? For companies, they are like a small companies there. Hmm. Okay. Hmm. So I think they don't require data analysis because they can easily manage business analysis. The business analyst person have to knowledge about subject matter expert and also in Excel, Power BI, SQL and Python. Hmm. They can easily handle their Hmm. data analysis may not be required there. It depends. Then you will not call him as a business analyst. अगर वो बिजनेस एनालिस्ट का काम और डेटा एनालिस्ट का काम दोनों कर रहा है ना, उसको और बिजनेस एनालिस्ट नहीं बोलेंगे, उसको डेटा एनालिस्ट ही बोलेंगे, ठीक है? जो छोटे कंपनी में फॉर एग्जांपल है, दे विल नॉट हैव बजट टू हायर टू डिफरेंट पीपल्स। एक बिजनेस एनालिस्ट का काम करेगा, एक डेटा एनालिस्ट का काम ऐसा नहीं हायर करेंगे, वो एक ही को हायर करेंगे, बोलेंगे आप डायरेक्टली क्लाइंट के पास जाओ, रिक्वायरमेंट समझो और खुद बनाओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कंपनी को क्या चाहिए उसके लिए। नहीं, बिजनेस एनालिस्ट सेपरेटली मुझे चाहिए जो सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर ही फोकस करेगा, then they will hire the business analyst. Okay, it all depends. Anything else, guys? Any questions? Okay, this today we are not discussing anything about how to create the reports कि क्या करेंगे कैसे नहीं. This is the generic session. Okay, here आप कुछ भी पूछ सकते हो. Some people may be feeling little bored, they might be already knowing all these things, but when I am teaching I will go to the last level. Okay, जिसको मतलब IT के बारे में कुछ भी पता नहीं, my focus will be on that person always. Okay, so please bear with me for the initial 2-3 sessions. Once we complete these basic things and all, then we will deep dive into the data analytics. Okay, I will tell you the architecture, मतलब डेटा कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे जाता है, कहाँ से कहाँ मूव होता है. All those things will start when we start the technical discussions. Okay, this is all the generic discussion. Yeah, Hi, sir. somebody was asking something. Hi, Yeah, sir. yes. सर ये कंपनी में वो डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? सपोज आई एम द वर्किंग इन द ट्रांजैक्शन एनालिस्ट, आई एम द वर्किंग फॉर ओनली फॉर क्लाइंट फॉर्म, but data analyst, what can I do for a data analyst employee? नहीं, आप ट्रांजैक्शन एनालिस्ट में करते क्या हो? Yes, sir. नहीं, करते क्या हो? What exactly you do? Suppose one claim also getting, but that claim also I'm filling and the reporting. Suppose one medical data, हाँ, orthopedic and surgery, the Hmm. data I should be only for coding. That's coding. it. Yes, coding. I think mostly data entry type ro work rohuchi Subhash. Yes, sir. Yes, sir. Data entry, right? So okay, data entry type ro work. Okay, got it. So let's say for example, I'll give you a quick short example. Suppose let's say you are running a business. कोई भी एक business आप कर रहे हो, ठीक है? कोई भी Yes, sir. business कर रहे हो, आपका एक छोटा सा स्टोर है, you are selling products. चलो कुछ भी Yes. प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. लेट्स से आपका उड़ीसा में लेट्स से 10 जगह पे ब्रांच है, 10 शॉर्ट ब्रांचेस है या ऑफिसेस है. तो आप क्या करते हो, उसमें प्रोडक्ट सेल करते हो. तो आपको कैसे पता चलेगा क्या बिजनेस हुआ है? एट द एंड ऑफ द डे कैसे पता चलेगा आपको क्या बिजनेस हुआ है, कौन सा कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन से लेट्स से योर बेसिकली आपका एक ड्रेस का स्टोर है, ठीक है, क्लोथ स्टोर या ड्रेस का शोरूम है.
तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास 10-12 ब्रांचेस है, बट एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए कि भाई जेंट्स कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, लेडीज में कितना सेल हुआ है, किड्स में कितना हुआ है, इन्फेंट कैटेगरी में क्या सेल हुआ है, सबसे हर एक कैटेगरी में हाईएस्ट सेल्स क्या है, टोटल सेल्स क्या है। ये सब को आपको अगर एनालाइज करना रहेगा, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे रिपोर्ट मांगना पड़ेगा। यस सर। इंडिविजुअल ब्रांच को बोलो कि मुझे एक्सेल शीट में भेजो आज क्या सेल हुआ है, पूरा ट्रांजैक्शन डेटा भेजो। तो शाम को यस क्या सर। आप वो डेटा को कलेक्ट करोगे, मर्ज करोगे, कुछ डेटा में जो जो मतलब कुछ डेटा क्लीनिंग वगैरह रहता है, बेसिकली डेटा को मर्ज करने के बाद कुछ डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह गड़बड़ रहेगा, या आपको मतलब एवरी आवर में हर एक घंटे में कितना सेल हुआ है, ये सब एनालिसिस करने के लिए एक डेटा क्लीनिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, जो कि सर बताएंगे आगे जाके, वो करेंगे। उसके बाद आप शो करोगे कि चलो मेरा जो भुवनेश्वर ब्रांच है दैट इज गिविंग मी हाईएस्ट सेल्स, केंद्रापड़ा करके ब्रांच है विच इज गिविंग मी लीस्ट सेल्स। ओके, ये ब्रांच में सेल्स ठीक है, 2-3 ब्रांचेस खराब सेल दे रहे हो, ये सब एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा, राइट? यस सर, आई अंडरस्टूड सर। ओके, सो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को क्लीन करता है, डेटा को एनालाइज करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, रिपोर्ट्स में इनसाइट्स निकालता है, क्या क्या डेटा में एक्चुअली हुआ है, बेसिकली ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ है, ओवरऑल आपको दिखाता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ कहाँ पे बढ़िया सेल हुआ है, कहाँ पे खराब सेल हुआ है, क्यों खराब हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये सब एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाता है फाइनली। ठीक है, यस ये सर। बेसिक है, हम लोग इन डेप्थ जाएंगे धीरे धीरे करके, बट ये एक बेसिक आइडिया है। डेटा एनालिस्ट का काम बेसिकली देखा जाए तो, वन सेकंड आई विल रिपीट, तो डेटा को पहले कलेक्ट करना है, ठीक है, डेटा को क्लीन करना है, अगर कुछ डेटा में कुछ इश्यूज है क्लीन करना है, डेटा का क्वालिटी चेक करना है ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये सारे जो एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, ये टूल को यूज करके देखना है कि क्या बेसिकली हुआ है डेटा में। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करना है, डैशबोर्ड बनाना है, और क्लाइंट को भेज देना है कि देखो 10 तुमने मुझे 5 साल का डेटा दिया है, देखो अभी तुम्हारा डेटा के साथ मतलब ये हुआ है, व्हाट हैपेंड इन योर डेटा, बेसिकली हिस्ट्रिकल डेटा को लेके आप उसमें से रिपोर्ट बना के शेयर करते हो। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। यस रिपोर्ट सर। देखने के बाद क्या, अगर जैसे सर ने बोला है सबको, आई मीन अगर मुझे ट्रेनिंग देना है, तो मेरे पास 2 लाख का बजट है, मैं 10 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, पूरा कंपनी का एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दूंगा, राइट? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଇଲ୍ ଓନ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟ ପିପୁଲ ହୁ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ୍ୟାକିଂ, ଯାହାଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ, ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରା 100 ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ କର, ବିକଜ ଆଇ ହାଭ୍ ଭେରି ଲେସ୍ ବଜେଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଯୋଉମାନେ ପରଫର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ କଲେ ହିଁ। ଆଉ ସେଟା ହାଉ ଉଡ୍ ଆଇ नो दैट, once I analyze their sales performance, then only I'll come to a decision that okay, ये 5 लोगों को मैं अगर ट्रेनिंग देके ठीक कर दूंगा, ये लोग सेल्स बढ़ाएंगे मेरे। अंडरस्टूड? तो डेटा एनालिस्ट यस। का काम ये है कि डेटा उसके पास डेटा कलेक्ट होके आ गया तो उसको ना डेटा को क्लीन करके, डेटा का क्वालिटी चेक करके, फिर उसको टूल्स वगैरह यूज करके डैशबोर्ड बनाना है। उसके बाद एंड यूजर को, क्लाइंट को डैशबोर्ड को शेयर कर देना है। क्लाइंट अभी डिसीजन लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो ये सारे जो डेटा क्लीनिंग हमने बोला, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोला, रिपोर्टिंग बोला, ये जो टूल्स है, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे टूल्स को यूज करके ये काम करेंगे। एसक्यूएल डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली डेटाबेस होता है, बेसिकली आपका जो एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, वो डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। एक्सेल में डेटा स्टोर भी कर सकते हो, रिपोर्ट बेसिक लेवल का रिपोर्टिंग कर सकते हो। और आपका पावर बीआई जो है विजुअलाइजेशन टूल है, बेसिकली उसमें रिपोर्टिंग भी होता है, डेटा भी आप क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, ईटीएल करके एक प्रोसेस है, सर समझाएंगे, वो भी करेंगे। और पाइथन में अगर आपके पास बड़ा डेटा सेट है, आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सब करेंगे धीरे धीरे, टूल्स के ऊपर धीरे धीरे जानेंगे। आज का जो सेशन था इट वाज ओवरऑल क्या है डेटा एनालिटिक्स में, और आईटी में काम कैसे चलता है, क्लाइंट को कैसे हम लोग बेसिकली आउटसोर्स कैसे किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, ये एक हाई लेवल पे था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डेटा, कैसे डेटा फ्लो होके आता है। क्योंकि देखो डेटा देखो, मैं ऑनलाइन में भी बेच सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट, मैं भी फिजिकल स्टोर में भी बेच सकता हूँ, मैं रिलायंस में भी, रिलायंस कोई मॉल में जाके भी, लेट्स से एस्प्लेनेड मॉल है उसमें भी एक काउंटर खोल के बेच सकता हूँ। तो डिफरेंट सोर्सेस रहता है, तो सब जगह से मैं डेटा, ऑनलाइन का डेटा कलेक्ट करूंगा, व्हाट्सएप में जो सेल हो रहा है उधर से डेटा कलेक्ट करूंगा, मैं स्टोर से डेटा कलेक्ट करूंगा, सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। वो डेटा का जो फ्लो है, डेटा साइंस क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा इंजीनियर क्या करता है,
एक डेडिकेटेड सेशन होगा जिसमें सर पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है बेसिकली और क्लाइंट को क्या डिलीवरी दिया जाता है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन. आज का जस्ट बेसिक, आज मतलब डेटा एनालिटिक्स के बारे में उतना नहीं डिस्कस किया, बट ओवरऑल क्या होता है दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. ओके सर. और किसी का कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम टुडे सेशन एटलीस्ट? नो सर, नो. Is there required ओके, सो आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे सेकंड और थर्ड सेशन में. One question is here, sir, Shankar sir. एक question यहाँ पे है. Yeah, you ask. sir, is there required to work with any clients? Data analysis person, because I think data analysis you past to level data analysis persons. It depends. To like dashboards and things. Hmm. But is there required to talk with any client? It depends. फिर से हर एक प्रोजेक्ट में you will not have the business analyst. हर एक प्रोजेक्ट में business analyst नहीं होगा. So in those cases you may have to talk with clients. And once you become little senior, okay, आप जब 7-8 साल का senior position में जाते हो, in that situation definitely you have to talk with client. Okay, so client engagement, it all depends project to project. कभी कभी ऐसा होता है आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस भी हो गए, they still you need to talk with the client. It's most required for that communication. कम्युनिकेशन क्लाइंट हो ना हो आपको कम्युनिकेशन चाहिए. ओके, बिकॉज विद इन द टीम ऑल्सो, अगर आपके टीम में फॉर एग्जांपल मैं आपको जब ये समझाऊंगा ओके, दिस इज द एंटायर आर्किटेक्चर, दिस आई विल एक्सप्लेन. डेटा कहाँ से आता है, कहाँ मतलब प्रिपेयर होता है, फिर डेटा वेयर हाउस क्या होता है, ETL क्या होता है, फिर रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, डेटा साइंस पाइथन क्या करता है, एंड यूजर के कैसे, ये जब समझाओगा तब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओके, बट स्टिल आपके टीम के अंदर एक डेटा इंजीनियर होगा, एक बिजनेस एनालिस्ट होगा, मल्टीपल डेवलपर्स होंगे, एडमिन होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोडक्ट ओनर होगा, लाइक दिस डिफरेंट कैरेक्टर्स विल बी देयर. आई विल एक्सप्लेन यू ईच कैरेक्टर व्हाट दे डू. ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किसको पूछना है. राइट, आपका पावर बीआई में कुछ इश्यू है, आप जाके डेटा इंजीनियर को नहीं पूछ सकते क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है उसके बारे में. तो यू नीड टू नो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन किससे पूछना है. और 100% of the cases, 99 भी नहीं, 100% of the cases, all the your team will not be in a same location. ठीक है, अभी मैं जिस टीम में काम कर रहा हूं, मैं भुवनेश्वर लोकेशन में हूं. मेरा टीम में 2 लोग हैदराबाद से है, 2 लोग बैंगलोर से है, एक पुणे से है, एक गुड़गांव से है, 3-4 लोग यूएस से है. किसी को ओडिया नहीं आता है. आई हैव टू कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो, राइट. जब टीम मीटिंग होता है आपको स्टिल, इफ यू नो हिंदी, आई नो हिंदी, देयर विल बी सम पर्सन फ्रॉम हैदराबाद और केरला एंड ऑल, ही मे नॉट बी नोइंग हिंदी. देयर आल्सो आई एम फोर्स्ड टू टॉक टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. And if you are talking to the client, 90% of the clients will be from abroad, foreign people. उनके साथ इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, no other option. So communication is must. Okay, उसके लिए we cannot do anything. That is required. But we can improve it. If suppose we are not so confident and all, we will improve it. In our sessions also, I will try to do that. In last 2, this diagram which you are showing on the board now, this was done by one of the student only. So in between and all, I will try to help some people to stand up and explain small things. Power query क्या होता है, Power BI यहाँ पे board पे, for online people you may not be able to see, but in offline here we have a board where students sometimes will come up and small topics they will explain to the entire class. So when you keep on doing that thing, no, then your communication will improve. Similar to online also, I will ask them, one of you, I will ask them, please share your screen and can you explain the architecture of Power BI. So when you also talk to the crowd, even you are sitting in your home, most of the times company में भी वैसा ही होता है, आप घर में बैठे रहते हो, स्क्रीन शेयर करते हो, पूरा दुनिया से बात करते हो, right? Similarly, you also need to explain here things. If you keep on doing those things and all, no, it will definitely improve your communication. Communication is something is must and should you need, but if you are not so confident, slowly you will get that confidence when you keep on talking. Used to be there, now it is less. Now mostly it is hybrid. Okay, hybrid माने को ना, weekly 2 दिन की 3 दिन you will be going to office
Just for attendance, you will come back and work from home only. Why? Because most of the time your meetings will be in the evening time. जो भी मीटिंग्स आपके जो भी मीटिंग्स होते हैं इवनिंग टाइम में होते हैं, क्योंकि क्यों आपका क्लाइंट यूएस में बैठा रहता है, उसके लिए जब दिन है तब आप काम करते हो, तो आपके मीटिंग 6 बजे से लेके स्टार्ट होते हैं, तो 6 बजे से 10 बजे तक आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, सो यू विल मार्क अटेंडेंस, गो होम एंड वर्क फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द केसेस. Okay, online somebody was asking some question. No, sir. So guys, see, most probably we'll be doing classes in LMS. Okay, so we have one LMS platform जिसमें हम लोग क्लास करेंगे. अभी के लिए 2-3 दिन के लिए ये जहाँ पे हम लोग फंडामेंटल्स बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा क्लास की, मतलब 4-5 घंटे के बाद. देन आफ्टर दैट एक बार आपने LMS इम्प्लीमेंट किया तो आपको यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग वीडियोस LMS एप्लीकेशन में मिलेगा, और क्लास ज्वाइन करने के लिए भी LMS में आप लॉग इन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि योर क्लास इज शेड्यूल्ड एट 10 AM इन द मॉर्निंग. सो इनिशियली हम लोग ये हफ्ता 3 क्लासेस लेंगे, उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीक्स इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट 4 से 4 मिनिमम लगे, और अगर आप ब्रेक नहीं चाहोगे तो 5-6 सेशन भी कर सकते हैं. नहीं तो आपको अगर ब्रेक चाहिए तो सर को बोल देना कि सर हमें वी नीड अ डे ब्रेक फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल. ओके, तो धीरे धीरे असाइनमेंट्स होगा, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. हर एक असाइनमेंट या कुछ भी सर क्लास में दिखाया तो सेम थिंग यू विल हैव टू, आपके साथ डेटा शेयर कर देंगे. डेटा शेयर करने के बाद आपको खुद को वो रिपोर्ट्स हो गया या छोटा मोटा जो भी टास्क रहेगा बेसिकली वो टास्क आपको करना पड़ेगा. ठीक है, अगर कुछ भी चैलेंजेस आप फेस करोगे तो नेक्स्ट डे सेशन में ये कर सकते हो, पूछ सकते हो. नहीं तो ग्रुप में भी आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो सारी चीज. आपका जो ग्रुप बनाया गया है देयर यू विल बी शेयरिंग, उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, देन आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया, सारे चीज आपको मिलेगा वहां पे. ओके, सो बट मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन LMS. खाली नोट्स आपको ग्रुप में मिलेगा और क्लास शेड्यूल वगैरह उधर ही हम लोग मेंशन करेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे से LMS में ही अपना इंटरनल LMS में ही क्लास स्टार्ट होगा. बट अभी के लिए जूम लिंक शेयर किया जाएगा, तो और क्लास के बाद रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा. एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को और कुछ क्वेश्चंस है? पावर BI से स्टार्ट होगा, उसके बाद SQL, एक्सेल, उसके बाद पाइथन. ओके Okay, tomorrow mostly I will try to cover IT में 3 different environments होते हैं. एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक UAT होता है, एक प्रोडक्शन होता है. इन तीनों का डिफरेंस क्या है, that I will try to explain you. और उसके बाद I will try to explain कि डेवलप प्रोजेक्ट्स 3 तरीके के होते हैं. एक होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक होता है माइग्रेशन प्रोजेक्ट. ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एज ए डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट में एज ए डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या होता है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट में आपका एज ए डेटा एनालिस्ट व्हाट इज योर वर्क. दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, Sujay sir, I have one question. यस. So can you share the whatever the application and all we have to work in future, so like LMS and all. So I need to compare for my laptop whether it's supporting or not for that. All those things will be taken care. Okay, once LMS comes, somebody from Talentel will connect with you and they will whatever is required, they will be installing. Or for LMS, I don't think anything is required. That will be a cloud base. From browser itself you can use it. For learning the tools and all, I will be guiding you in the class itself. Okay, for example, if you need to install Power BI, I will guide you how to install Power BI in the class itself. We all will install at the same time. So it will be supportable for MacBook, sir? For Power BI, you may, if you are working with MacBook, you may have to install a virtual machine. Okay, because in Windows only this will work. Yeah, that's why actually. Meanwhile, in free time, I can do that instead of struggling on the class time. No? Okay, so let's Shankar sir, we may have to connect with Mac people and guide them how to install the required things. ओके सर, आपने किया है काम सर, आपने मैक में किया है क्या, या आपको आइडिया है ऑलरेडी? No, but I know definitely we need to install the VM. Okay. VM
VM एक इंस्टॉल करके VM के अंदर you need to have the Windows OS and then you can install the Power BI. Okay, excellent then. Shankar sir, please help me on that, please. Yeah, And yeah, when will sure. be the next class? एक काम करते हैं, we'll have the next class day after tomorrow. ठीक है, Wednesday ही होगा. So ये हफ्ते में we'll have 3 classes. From next week onwards we'll have full fledged से next week से continue करेंगे. 4 classes minimum. अगर आपको break चाहिए तो break देंगे, नहीं तो continuous plan. 5 days में 4-5 days, even if required 6 days also होगा. But I think you need a break, like 5 दिन होगा तो We आपको will see how the class goes, how is your understanding. Based on that, I will decide whether you need a break or you are comfortable. After taking feedback from all of you, accordingly we will decide. Okay. Okay. Right. Yeah, you were asking something. Second. Eta. UAT माने हो जी user acceptance testing. User acceptance testing. Okay, I will tell you what exactly is this. I will be writing running notes. Okay, you need not to note it down during the class. What I will do, let me show you an example. So for every batch, I will be writing the running notes. For example, like this. Okay, जेतला हमारा Power BI start है ला, वो notes बने भी, class रे ही बने भी, कि building blocks कौन Power BI पेंगे, interview questions कौन आसी पर है, okay, what kind of questions they may ask, okay, how to answer, all those things I will be noting down date by date, every date, what is the dimension, what is the fact, okay, what is every date, what we have done on that day, x-axis recon, y-axis recon, everything, okay, whatever we are discussing, I will be noting down in the running notes, and every day I will be sharing this one. Okay, this document you need to read every day. I tell this point to every batch. Starting, they will read and then they will stop. Okay, but you have to read this every day, at least once or twice. If you do that one, trust me, by the end of the course, you are already ready for the interview. Out of this, 70% of the questions will come in the interview. That is for sure. No other go. Nobody can ask anything out of this 70%. I take interviews, I know. Okay. Remaining jo 30% they will give some situational based questions. That situational based questions also, I will give some examples, and how to answer, I will tell you. But once interview starts, okay, interview will be always 30 minutes. Maximum it will be 30 minutes. So in that 30 minutes, starting, nobody is going to ask very difficult situational based questions. Okay, initial में वो क्या करते हैं, 10-15 मिनट आपको comfortable करने के लिए they will ask the normal questions. Normal questions मतलब वो Power BI related, SQL related ही होंगे, but direct questions होंगे. कितने तरीके के filters होते हैं Power BI में, filter और slicer में difference क्या होता है, गेटवे क्या होता है, कितना आप एक दिन में कितना बार रिफ्रेश ऑटोमेट कर सकते हो रिपोर्ट को, एक रिपोर्ट को मुझे क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करना है, आप कैसे करोगे, पावर पिवोट और पावर क्वेरी में डिफरेंस क्या है, मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज में डिफरेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट से आप आंसर कर लोगे. फैक्ट मतलब क्या है, डायमेंशन मतलब क्या है, ओके, ऐसे क्वेश्चन, कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस है. उसके 15 मिनट के बाद जो बाकी का 15 मिनट होता है, उस टाइम में वो ऐसा कुछ पूछेंगे. मेरे पास एक स्लाइसर है, एक टेबल है, स्लाइसर में डेट कॉलम, ईयर कॉलम है. मैं अगर 2024 सेलेक्ट करता हूं, मुझे 2022 प्लस 23 प्लस 24 तीनों का डेटा मिला के दिखाना है. व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे. बोलेंगे कि मेरे पास एक स्लाइसर है, ऑटोमेटिकली सारे विजुअल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, मगर मुझे एक विजुअल ऐसा है जिसको फिल्टर नहीं करना है, बाकी सब फिल्टर करना है, आप क्या करोगे? तो ऐसे कुछ सिचुएशनल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो दोस थिंग्स एंड ऑल विल कम. बट अगर इनिशियल के 15-20 मिनट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए, तो वो लोग वो पूछेंगे भी नहीं, वो 15 मिनट में ही बोल देंगे आई एम डन विद द इंटरव्यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बोल के छोड़ देंगे. ठीक है. So to handle the half an hour interview, you definitely need to be 100% confident with all the points which I am putting it in this document.
Okay, and we are going to create so many reports. Okay, for example, just I'm trying to show you example. पहले के जो 7 सेशन होंगे, मतलब डेटा एनालिसिस स्टार्ट होने के बाद और भी अगर हम स्टार्ट करते हैं 7-8 सेशन में एक मॉड्यूल खत्म होगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट रिलेटेड, उसी जो भी हमने सीखा है उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट में दूंगा। उसको डॉक्यूमेंट में आप एक नया डेटा दूंगा, जो डेटा में हम काम कर रहे हैं वो अलग होगा और द डेटा फॉर द असाइनमेंट विल बी डिफरेंट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन यू नीड टू क्रिएट दिस डैशबोर्ड। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे आई वांट टू सी द टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट डेथ रेट। बहुत सारे कंट्रीज हैं मगर मुझे टॉप 10 ही दिखाना है। और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सारे हैं, इस पेज से दूसरे पेज को फिल्टर मुझे पास करना है। फिर यहाँ पे एक बटन है, ये जब ऑफ रहेगा, ये जब ऑन रहेगा मुझे डेटा वैल्यूज दिखना चाहिए। जब ये इसको ऑफ कर दूंगा बटन को, वो हट जाना चाहिए। Okay, like this, so many things are there which you will be doing by your own. Okay, so this is one project. So every module I am going to give you projects. Yes, sir. For example, IPL का हो गया, IPL का data set दूंगा, and then you may have to create. People who are interested in cricket and all, they will understand very well. ये 2022 का ऑक्शन का डेटा है। ओके, 2022 का ऑक्शन में क्या हुआ था, उस डेटा को लेके मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था ऐसे ही। ओके, सो हियर इफ यू सी हाउ डीप वी आर गोइंग, लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, सी टॉप 10 हाईएस्ट बिड प्लेयर्स, ईशान किशन वाज द हाईएस्ट वन ऑन 2022 एनालिसिस। ओके, ऑक्शन में 15.25 CR। लाइक दिस टॉप 10, दीपक जहर इज द सेकंड। यू विल नॉट थिंक, मतलब आपको लगेगा ये सही में था कि नहीं, but actually these people were the top. For example, Sunrisers, they have bought 4 batters, 5 all-rounders, 8 bowlers, 3 wicket keepers. ये 3 wicket keeper कौन है? From this data, if I ask you who are the 3 wicket keepers of Sunrisers who bought, it is very difficult for you. But for example, I created a report in such a way, I click here, right click and go to the other page, I can immediately know who are those 3 people. Okay, I can go back again. Now I want to see, for example, Rajasthan Royals, who are the 4 batters they have bought. Again, I will go to the same page, but it will show different data for me. Okay, उसका ब्रेस प्राइस क्या था, कितने प्राइस ऑक्शन में वो लोग परचेज हुए हैं, everything I have here. For example, Mumbai Indians, 2 wicket keepers. Who are they? Okay, Joel and Ishan. Okay, like this you are going to create. Okay, this is what required in industry also. You need to create a report in such a way कि आपको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए within seconds you should get it. फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे कांटेक्ट करना है, इन तीनों के साथ कांटेक्ट करना है। सनराइजर्स हैदराबाद जो 3 विकेट कीपर खरीदे हैं उनके साथ मुझे कांटेक्ट करना है। कैसे करूंगा, मुझे उनका नाम ही पता नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स है, हु आर दे आई डोंट नो। बट व्हेन आई हैव ए रिपोर्ट लाइक दिस, आई कैन गो टू दैट person and I will get the information, I can call them. Like this, you are going to create multiple dashboards. For example, I have one more I will show. For example, license. Okay, this is a real project. Okay, there was some freelancing opportunity I had. I have created this one. I will also give the same data to you. होता है, बट यू नीड टू हैव दैट एक्सपीरियंस। आपको, आप अगर प्रूव कर पाओगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देन यू विल गेट slowly those kind of projects. Okay, like ServiceNow, somebody was saying, I think Prashant or Prasanna, somebody was telling they were working in ServiceNow related things and all. So there will be a lot of licenses. Okay, when there are a lot of licenses, I want to know, for example, different companies are there. ITIL, these many licenses are there. 61 licenses are there. Who are they? 61. These are the 61 people. So I can easily understand who are the people having the ITIL licenses. I want to know who are these 4 people from a different vendor.
So these are the 4 people, their email ID, everything I have in place. Okay, I can easily contact them, right? So all those information we can show here. 2022 में कितने licenses purchase किए हैं, 23 में कितने किए हैं, 21 में, 20 में, 2019 में. So all this information we can show it. Okay. If we have data like this, it will be very difficult for us to understand. But if you create a report like this, then it is very easier for us. If I select one particular, this one, according to that particular vendor, what are the different licenses? Okay, so we can slice and dice the data. Right, so like this, you will be creating a lot of reports. But for that, you need to be very confident. Whatever we are discussing in the class में आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं. उसके बाद घर में आपको 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना है. If you are practicing every day 1 hour or 2 hours,